औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम. I hope everybody is fine and healthy. So let's start. In the last lecture, we had the introduction of the DC to DC converter. We discussed that the DC to DC converter are broadly classified into three main classes: buck converter, boost converter, and the buck boost converter. In the buck converter, the output DC voltage is less than the input DC voltage, and we can also say that it is a step up DC converter. Then we have a boost converter in which the output DC voltage is greater than the input DC voltage, and we can say that it is a step up DC converter. Okay. Then we have a buck boost converter in which the output DC voltage can either be less than or greater than depending upon the duty cycle. In the last class, we discussed in detail the introduction of the buck converter, the working of the buck converter, and then the designing of the buck converter. In this lecture, we will study the analysis and design of the boost converter and the buck boost converter. So moving on further, I want to clear a small confusion. Some student had this question from the last class that in the buck converter, you can see this red spot that the graph starts from I minimum. How this is possible? Because inductor have to charge, then it will discharge to I minimum. So answer is that we are studying the steady state analysis of the converter, not the transient response. Yes, you are right. In the transient response, the graph will start from 0 and then it will go to I maximum and then it will go to I minimum, and then we can have this continuous conduction graph. Okay, so what we have done, we have considered only this part. Okay, this is the steady state. This is the steady state. This is the transient analysis. What we are doing is the steady state analysis. Okay, so yes, you are right, the graph will start from 0, but that is a transient response. We are only discussing now the steady state. I hope this point is clear now. Okay, so let's move towards our introduction of today's lecture. A boost converter regulates the average output voltage at a level higher than the input or the source voltage. That is why we also say that this is a step up DC converter, that the output DC voltage is greater than the input DC voltage. Okay. When we will see the circuit of the boost converter, you can analyze that the number of the components and the name of the components are the same. Only the difference lies in the placement of these components. Okay. So let's move towards the circuit for ideal boost circuit. As you can see over here, what we have a input DC voltage. Then we have an inductor. This is our inductor. Black one is our inductor. This is our inductor. We have a switch. If you remember, in buck converter, the switch was placed over here before inductor. So its only difference is the placement of the components. Then we have a diode. Then we have a filter capacitor, and we have the output load. And this is our voltage across the output load resistance. Okay, I hope these are clear to you. So let's analyze the working of this circuit. So let's analyze this circuit. अब होगा क्या इधर कि जब हमारे पास ये स्विच जो है क्लोज होगा, ठीक है, तो इंडक्टर हमारा चार्ज होगा. ये बात है, ठीक है. हमारा इंडक्टर जो है वो चार्ज होगा. इस वैल्यू से वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी. ठीक है. और जो वी एल होगा वो किसके बराबर होगा? V
इनपुट की, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है कि जब हमारा स्विच ऑन होगा, मतलब हम उसको क्लोज कर देंगे, तो ये डीसी वोल्टेज इस इंडक्टर को चार्ज करेगा, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास ये क्लोज पाथ बन जाएगा, ये वाला, दिस वन, ये हमारे पास एक क्लोज पाथ बन जाएगा। सो हमारे पास जो वी एल है वो वी इनपुट के बराबर आ जाएगा। अब जब हम लोग इस स्विच को ऑफ करेंगे, ठीक है, इस स्विच को ऑफ करेंगे, तो ये जब ये स्विच ऑफ हो रहा होगा तो स्विच क्या करेगा, इस इंडक्टर करंट को ज़ीरो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये तो इससे इसके थ्रू चार्ज रखना, तो ये इस इंडक्टर करंट को ज़ीरो करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस चेंज को अपोज करेगा, ठीक है, और ये अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे, ये इंस्टेंटेनियस चेंज को इंडक्टर अपोज करेगा और अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर, जैसे ही अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा, ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या सर्किट बनेगा, हमारे पास ये हमारे पास ओपन सर्किट बन जाएगा। हमारे पास डीसी वोल्टेज, डीसी इनपुट वोल्टेज और इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी हमारे पास क्या करेगी, इस कैपेसिटर को भी चार्ज करेगी और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करेगा। कुछ वर्किंग क्लियर होगी। पहले इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। शुरू में हमारे पास क्या है, जब हमारा स्विच क्लोज्ड है, ठीक है, तो हमारे पास इंडक्टर की पोलैरिटी हमारे पास यूं है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव्स को क्या कर रहा है, रिवर्स बायस कर रहा है, ठीक है। जब हमारे पास स्विच क्लोज्ड है तो हमारे पास एक करंट को एक लीस्ट पाथ मिल रहा है यहाँ से। इंडक्टर क्या करेगा, सॉरी, डीसी इनपुट वोल्टेज क्या करेगा, इस इंडक्टर को चार्ज करेगा, ठीक है। और जो हमारा वी एल है वो किसके इक्वल होगी, वी एस के, ठीक है। जैसे ही हम स्विच को ओपन करेंगे, तो ये स्विच जब ओपन होगा तो वो इंडक्टर के करंट को इंटरप्ट करेगा, जीरो करने की कोशिश करेगा। इंडक्टर क्या करेगा, इस चेंज को अपोज करेगा। इस चेंज को अपोज करने के लिए वो क्या करेगा कि हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी रिवर्स करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। इसके पॉजिटिव होने से क्या होगा, हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। और हमारा इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी और इनपुट डीसी वोल्टेज कैपेसिटर को भी चार्ज करेंगे और लोड रेजिस्टेंस से भी मूव करेंगे। जो हमारे पास जो इनपुट करंट है और इंडक्टर करंट है वो हमारे पास लोड में से फ्लो करेगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसको रब कर लूँ, अगर हम यहाँ पे देखें और हम केवीएल लगाएं, ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वी एल प्लस वी इनपुट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा होगी इनपुट वोल्टेज से, ठीक है। अब इस सर्किट को हम एनालाइज करेंगे दोनों तरीकों से, सॉरी, दो पार्ट्स में, व्हेन द स्विच इज ऑन एंड व्हेन द स्विच इज ऑफ, तभी चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। अब तो हमारे पास स्विच ऑन होगा तो हमारे पास सर्किट कुछ यूँ बनेगा, हमारा जो ये इनपुट डीसी वोल्टेज है ये इंडक्टर को चार्ज करेगा, ठीक है। और क्योंकि हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा कैपेसिटर भी चार्ज हुआ है प्रीवियस स्टेज में, ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करेगा, इस जो कैपेसिटर है वो लोड करंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस कंडक्शन मोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। या अगर हम डीसीएम की बात करें, दोनों सूरतों में हमारे पास कैपेसिटर क्या है, इस लोड को प्रोवाइड, इस कैपेसिटर जो है लोड को करंट प्रोवाइड करेगा जब हमारे पास ये स्विच जो है वो ऑन कंडीशन में होगा, ठीक है। मैथमेटिकली इसको देखते हैं।
मैथमेटिकली हमारे पास क्या है कि वी एल इज इक्वल टू वी इनपुट, ठीक है, इन एल इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, ठीक है। डी एल हमारे पास क्या है, हमारे पास चेंज इन द इंडक्टर करंट है, ठीक है। और किस टाइम के लिए है, डेल टी हमारे पास क्या है, ड्यूटी साइकिल है ऑन पीरियड ऑफ द, ये हमारे पास है ना, दिस इज आवर, ये स्विच पे जो हम पल्स दे रहे हैं, तो जब हमारे पास स्विच ऑन है जिस टाइम के लिए, उसके लिए हमारे पास वी इनपुट किसके बराबर है, वी एल के, ठीक है। तो डेल टी हमारे पास क्या बन जाएगा, डी टी, ड्यूटी साइकिल इनटू टाइम पीरियड, जिस टाइम के लिए हमारे पास स्विच ऑन है, ठीक है। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो डेल आई पॉजिटिव क्या है हमारे पास, बिफोर द स्विच इज ओपन, बिफोर द स्विच इज ओपन, ठीक है। और डेल आई पॉजिटिव क्या है, बिफोर स्विच इज ओपन, हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगी, वी एस डिवाइडेड बाई एल इंटू डी टी। ये सेम एनालिसिस है जो कि हमने बक कन्वर्टर में किया था। अच्छा, अब क्या होगा जब हमारे पास स्विच ऑफ होगा, अब जब स्विच ऑफ है हमारे पास, तो इंडक्टर अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा, ठीक है। ये मैंने बनाई हुई वो वाली पोलैरिटी जो कि हम लोग असाइन करते हैं, सर्किट में असाइन करते हैं, ठीक है। इस वाले सर्किट में हमारे पास क्या हो, हमारे पास पोलैरिटी इंडक्टर की यूँ होगी, ठीक है। और हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होगा, इस केस में कैपेसिटर, उस वाले केस में हमारा जो कैपेसिटर है वो बेसिकली क्या कर रहा था, वो लोड करंट प्रोवाइड कर रहा था। इस केस में हमारे पास कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, ताकि वो नेक्स्ट साइकिल में जब हमारे पास इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा तो वो लोड को करंट प्रोवाइड करे, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, वी एल किसके बराबर आ जाएगी, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है वी एस, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है वी एस, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है वी नॉट, ठीक है। तो वी एल क्या आ जाएगी, वी एस माइनस वी नॉट, ठीक है। डी आई एल बाई डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एल। और ये हमारे पास क्या है, डेल टी हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर ये हमारे पास हमारा पी डब्ल्यू एम है, तो इस केस के लिए हमारा इंडक्टर चार्ज हो रहा है और इसके लिए हमारा इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, डी डी टी, टी इज द टाइम पीरियड, और ये हमारे पास क्या है 1 माइनस डी इंटू टी, लगे टाइम ऑफ, टी ऑफ की बात कर रहा हूँ, इसको हम टी ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ ये हम ट्रांजिस्टर की बात नहीं कर रहे, हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो जो इंडक्टर जितना चार्ज हो रहा है उतना ही डिस्चार्ज होगा, ठीक है। क्योंकि हम अपने एनालिसिस में हमने जब बक कन्वर्टर पढ़ा था तब भी हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था कि ये वाला पार्ट, इसको इस तरह समझते हैं, जो ये वाला पार्ट है, जब हम आइडियल बूस्ट कन्वर्टर की बात करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जो ये वाला पार्ट है ये लॉसलेस पार्ट है, दिस इज द लॉसलेस पार्ट, ठीक है। जितना हमारे पास इंडक्टर जहाँ पे चार्ज हो रहा है उतना ही फिर वो डिस्चार्ज हो रहा है, इसी तरह जितना चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है उतना ही चार्ज जो है वो फिर हमारे पास डिस्चार्ज हो रहा है। तो चार्ज रिमूव इज इक्वल टू चार्ज एक्यूमुलेट, दोनों सूरतों में तो ये हम लॉसलेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। लॉसलेस का अभी हम आगे जाकर लॉसलेस थोड़ा और इसको हम इस टर्म को चेक करते हैं। तो अगर हमारे पास the rise in the fall current in the on state must match the fall in the off state, तो del I पॉजिटिव इज इक्वल del I नेगेटिव, ठीक है। वैल्यू पुट की है तो हमारे पास आंसर हमारे पास क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस 1 माइनस टी, ठीक है।